dear students, today in function chapter we have lecture 10 and we are going to do some solved problems so that you can have some idea how to make exercise given to you, is it? So, I am starting the problems. I will try to take maximum number of problems. Problem number 1. Today we are going to do solved problems. Number 1 I have f of x is equal to 9 raised to the power x divided by 9 raised to the power x plus 3. We have to prove that f of x plus f of 1 minus x is equal to 1, and then we have to find the value f of 1 upon 2021, f of 2 upon 2021, and in this way at the last f upon 2020 upon 2021. This we have to find. Okay. The problem has two parts. First, we have to prove f of x plus f of 1 minus x equal to 1. Then we have to find value of this series. The first, we are going for the first part. F of 1 by x will be 9 raised to the power 1 minus x divided by 9 raised to the power 1 minus x plus 3, which can be written 9 upon 9 to the power x divided by 9 upon 9 to the power x plus 3. Then it is 9 upon 9 plus 3 times 9 to the power x. Okay. Then it is 3 upon 3 plus 9 to the power x. इस स्टेप को अच्छे से समझिएगा. मैंने डिनोमिनेटर से 3 कॉमन ले लिया, तो नाउ 3 upon 3 plus 9 to the power x. Now this is f of 1 minus x, and here we have f of x. So we have to prove f of x plus f of 1 minus x equal to 1. Now that you can check, this is f of x, this is f of 1 minus x. Do we have their sum equal to 1? You can check this plus this. Clearly they will make equal to 1. So in this way our first part is proved, f of x plus f of 1 minus x equal to 1. Now I am coming to the second part. We have to find the value of this series. So now first term, second term, I am not making any change here, but tell me last term. May I write it as 1 minus 1 upon 2021, and second last term f of 1 minus 2 upon 2021. बोलिए, लिख सकते हैं सर? लास्ट टर्म को मैंने लिख दिया f of 1 minus 1 upon 2021. Second last term f of 1 minus 2 upon 2021. Now using this relation, f of x plus f of 1 minus x equal to 1. Can I say first term and last term? First and last they will make 1. First and last they will make 1. Similarly, second and second last they will make 1. First and last they will make 1. It is f of x, then it is f of 1 minus x. F of x, then it is f of 1 minus x. So a pattern is going on. Which pattern? A term from starting and a term from ending. They are making 1. First and last मिलके 1 बना रहे हैं, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट मिलके 1 बना रहे हैं. तो एक टर्म स्टार्टिंग से ले आ रहा और एक टर्म पीछे से आ रहा. दे आर मेकिंग 1.
So in this way we will have 1 1 1 1 1 कितनी बार? It will come, they are how many term? 1 से लेके 2000 2020 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 2020 और एक स्टार्टिंग का और एक आखिरी का मिलके 1 बना रहा, तो इस तरह से 1 टोटल कितनी बार आएगा? 1 will come 1010 times. So final answer is 1010. This is our final answer. Fine. So our function was given 9 to the power x divided by 9 to the power x plus 3. पहले हम लोगों ने प्रूफ किया f of x plus f of 1 minus x equal to 1. Then we are finding the value of series. Which series? F of 1 by 2021, f of 2 by 2021 up to f of 2020 divided by 2021. Okay. So this was problem number 1. Now I am coming to problem number 2. Problem number 2, if 2 times f of xy is equal to f of x raised to the power y plus f of y raised to the power x. For all x and y belonging to real and f of 1 is equal to 3, we have to find summation over f of r, where r going from 1 to 10. Okay. So student, such kind of problem we call problem has functional equation. This is an equation in terms of function. We call it functional equation. F1 is given 3 and we have to find the value of this summation. Now tell me, if I open the summation, what will come? F of 1 plus f of 2 plus f of 3 up to f of 10. Okay. So anyhow, if we can get the values of f2, f3 up to f of 10, this summation will come. So f1 is given to us and to complete the problem we need f2, f3, f4 up to f of 10. ये values अगर हमें मिल गई तो हमारा problem complete हो जाएगा. Now this functional equation is given to me and I will put values of x and y to decide these values. So here मैंने x को x रखा और y को मैंने 1 लिया. What will come? 2 times f of x is equal to f of x plus f of 1 raised to the power x. मैंने y को 1 लिया, so ये इधर गया. So f of x is equal to how much f1? f1 is 3. So dear student, in this way हमने directly function पता लगा लिया कि function is what? 3 to the power x. Now f2 3 square, f3 3 cube and so on. We can put the values here. f1 is 3, f2 is 3 square, f3 is 3 cube. In this way the last one will be 3 to the power 10. Now this is what? It is clearly a GP. GP के सम का फॉर्मूला क्या होता है? A times r to the power n minus 1 divided by r minus 1. What is A here? 3. How much r? 3. And number of terms 10. So 3 times 3 to the power 10 minus 1 divided by 3 minus 1. That's my answer. Okay. So in this problem we had a functional equation using which we have found
required values of function. For example, f1, f2, f3 up to f of 10. Now using all those, final answer 3 times 3 to the power 10 minus 1 the whole divided by 2. Okay. So problem number 2. Now I'm coming to problem number 3. My problem number 3 is, अब मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ डोमेन और रेंज के ऊपर. f of x is equal to 1 upon greatest integer x plus log of x square minus 3x plus 10, where log has base 1 minus fractional part plus 1 upon root over 2 minus mod x plus 1 upon root over sec of sin x. Is it? Now students, here in this problem we have to find domain. क्या निकालना है? डोमेन निकालना है. Is it? एक बहुत बड़ा सा फंक्शन गिवन है जिसकी हमें डोमेन निकालनी है. And what we do in case of domain? डोमेन का मतलब होता है values of x for which function is defined, function is existing. So here we have to discover values of x for which each and every term should be defined. So one by one we will write the condition to define each and every term. मैं अगर इसकी बात करूं, since here we have denominator, तो our requirement will be what? Greatest integer not equal to 0. Whenever we see denominator, what we say? Denominator not equal to 0. So square bracket x not equal to 0. No. Square bracket 0 कब होता है? Square किसी भी नंबर का square bracket 0 कब होता है? When number is in decimal 0 to 1. Square bracket 0 नहीं होना चाहिए. That means x should not be 0 to 1. We want square bracket not equal to 0. स्क्वायर ब्रैकेट 0 कब होगा? जब उसके अंदर का नंबर डेसिमल में होगा. स्क्वायर ब्रैकेट 0 नहीं होना चाहिए, अंदर वाला नंबर डेसिमल में नहीं होना चाहिए. नॉट बिलोंगिंग 0 to 1. फाइन. अभी पहले मैं इस पे आ रहा हूं. फॉर इट टू बी डिफाइंड हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी? अंडर रूट के अंदर 2 माइनस मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0. सो मॉड एक्स लेस देन 2. इन दिस वे एक्स in between minus 2 and 2. जब मैंने आपको मॉड फंक्शन के बारे में बताया था तब ये चीज़ बताई थी. मॉड किसी नंबर से छोटा तो अंदर वाली क्वांटिटी नंबर के माइनस और प्लस के बीच में. दिस वन. अंडर रूट के अंदर वाली टर्म शुड बी पॉजिटिव. तो sec ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन 0. स्टूडेंट पहले इसको समझते हैं. sec ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन 0. इसी में आपको दिक्कत आने वाली है. इसको सेटिस्फाई करने वाले x मुझे लिखने हैं. sec ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन 0. आई हैव टू राइट वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन. नाउ इतना सबको क्लियर होगा कि साइन की वैल्यूज क्या होती है. साइन कहां से कहां तक होता है? साइन कितना मिन होता है, कितना मैक्स होता है? अगर मैं आपसे बोलूं in this condition we have taken sine and sine over what? Sorry, we have taken sec and sec over what? In this condition we have taken sec over sine. और sin -1 से 1 के बीच का एक फिगर होता है. तो अल्टीमेटली हमने sec ले रखा है. किसके ऊपर ले रखा है? -1 से 1 के ऊपर ले रखा है. sec का ग्राफ जाके देखिएगा. sec का ग्राफ जाके देखिएगा. इनपुट अगर -1 से 1 होता है तो sec का ग्राफ बाय डिफॉल्ट x एक्सिस के ऊपर है. व्हाट आई एम सेइंग, हमने sec ले रखा है. किसके ऊपर ले रखा है? -1 to 1 के ऊपर. ग्राफ में जाके देखिए कि sec के ग्राफ में
इनपुट अगर -1 से 1 के बीच है तो सेक का ग्राफ ऊपर है, सेक का ग्राफ ऊपर है। ये आपको ऐसे समझ में आएगा, जब आप सेक का ग्राफ देखोगे तो आपको दिखेगा कि -π/2 से π/2 के बीच में सेक का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, और -1 to 1 कहां पर आएगा, वो -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। तो इन द नट सेल आई विल से x बिलोंगिंग टू R। ये जो कंडीशन है सेक ऑफ साइन ग्रेटर देन 0, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हमेशा सही होगा। तो एवरी x विल एग्रीगेट, सेक मैंने ले रखा है -1 to 1 के ऊपर, सेक का ग्राफ कहता है -1 to 1 में सेक का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी पॉजिटिव है। तो एवरी x विल एग्रीगेट, तो x बिलोंगिंग टू R। अब हम लोग इस पे आते हैं, बताइए इसके लिए आप कंडीशन क्या लिखोगे। सबसे पहला कंडीशन, लॉग का बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 1। बेस ऑफ लॉग हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, बेस ऑफ लॉग नॉट इक्वल टू 1 होता है, और जिस पे लॉग लेते हैं मस्ट बी पॉजिटिव। इज दिस ओके? We will work on these three conditions to satisfy second term, which is a term of log. Quadratic must be positive. Why? Because log is taken only on positive one. Base of log positive होना चाहिए, base of log not equal to 1 होना चाहिए। अब समझते हैं 1 by 1। इसको एग्री करने वाला x 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट ग्रेटर देन 0। बताओ कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू क्या होती है, कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू 0 to 1 होती है, कर्ली ब्रैकेट की वैल्यू 0 to 1 होती है। अगर मैं बोलूं 1 में से कर्ली ब्रैकेट जब भी माइनस करोगे हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। सो इफ आई से x बिलोंगिंग टू R, बोलो समझ में आएगा। कर्ली ब्रैकेट होता क्या है, कर्ली ब्रैकेट 0 होता है, डेसिमल में होता है। तो 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको एग्री करने वाला x बिलोंगिंग टू रियल होगा। नाउ 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट नॉट इक्वल टू 1, बताइए 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 कब आएगा, जब कर्ली ब्रैकेट 0 हो जाएगा। जब कर्ली ब्रैकेट 0 हो जाएगा तो 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 आ जाएगा। हमें 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 नहीं चाहिए, इट मीन्स कर्ली ब्रैकेट 0 नहीं होना चाहिए। और कर्ली ब्रैकेट 0 कब होता है, व्हेन एक्स इज इंटीजर। तो जल्दी से बताइए ये पॉइंट आपको समझ में आया। 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स कर्ली ब्रैकेट 0 नहीं होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट 0 नहीं होना चाहिए, एक्स इंटीजर नहीं होना चाहिए। एक्स इंटीजर होने पे कर्ली ब्रैकेट 0 हो जाएगा और 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 आने लगेगा। 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 नहीं चाहिए, कर्ली ब्रैकेट शुड नॉट बी 0, एक्स शुड नॉट बी इंटीजर। That's one. X square minus 3x plus 10 greater than 0. It's a quadratic. It's a quadratic in which discriminant less than 0 and a positive. बताओ ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसको ऐसा लिखते हैं here. This quadratic has discriminant negative and a positive. So quadratic greater than 0 always. So x belonging to R. देखिए यहां पे मैंने क्वाड्रेटिक का लॉजिक यूज किया है। यहां पे मैंने क्वाड्रेटिक का लॉजिक यूज किया है। whenever a quadratic has discriminant negative which is happening here and coefficient of x square positive, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, स्मॉल ए पॉजिटिव हो, बाय डिफॉल्ट ऐसी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होती है।
तो क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 हर x के लिए होगी. सिंस इट इज अ डिफॉल्ट कंडीशन, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0 हमेशा होती है. सो x बिलोंगिंग टू R. नाउ स्टूडेंट्स, वन बाई वन वी हैव डिफाइंड ईच एंड एवरी टर्म. रिगार्डिंग द फर्स्ट टर्म हमें x पता लग गया, रिगार्डिंग द सेकेंड टर्म हमें x पता लग गया, रिगार्डिंग द थर्ड टर्म हमें x पता लग गया, रिगार्डिंग द फोर्थ टर्म हमें x पता लग गया. नाउ आई एम लुकिंग फॉर द फाइनल आंसर. व्हाट विल बी माय फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी कॉमन ऑफ ऑल दिस. ये जितने भी x हमें मिले हैं इन सब का अगर हम कॉमन ले लें, दैट विल बी अवर फाइनल आंसर. तो अब मैं कॉमन लेने जा रहा हूं. तो जो भी x की वैल्यूज मिली हैं उन सबको रखते हुए बाकी सब मैं हटा रहा हूं. So now we will go for कॉमन लेने का प्रोसेस. हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन वन बाई वन वी विल प्लॉट द सॉल्यूशन. इट इज सेइंग -2 to 2, तो -2 से 2 के बीच में हमें लाइन लेनी होगी. फाइन. ये वाला कह रहा 0 से 1 नहीं लेना है, तो 0 समवेयर हियर, 1 हियर. 0 to 1 नहीं लेना है. 0 to 1 नहीं लेना, इट मीन्स 0 से 1 के बीच में गैप आएगा. 0 से 1 के बीच में गैप आएगा. नाउ x नॉट बिलोंगिंग 0 to 1, मतलब इसने बोला, और 0 पे क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट. 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट है मीन्स व्हाट? 0 नहीं लेना है. 0 नहीं लेना है, इट मीन्स जो बचा उसमें 0 पे एरो आएगा, 1 पे डॉट आएगा. अब देखिए इसमें अपनी अकल लगाइएगा, इसमें कन्फ्यूज़न होगा. 2-3 बार इसको ट्राई करना, फिर समझ में आएगा. 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट है, 0 पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लेना है, मतलब 0 को नहीं लेना है, तो 0 पे एरो आ गया. 1 पे राउंड ब्रैकेट था, 1 पे राउंड ब्रैकेट था, इस मीन व्हाट? नॉट बिलोंगिंग टू 1, जबकि 1 पे राउंड ब्रैकेट है, इट मीन्स बचे हुए में 1 आएगा, तो 1 पे डॉट लगाया मैंने. फाइन. बाकी क्या कह रहे हैं? x बिलोंगिंग टू r, x बिलोंगिंग टू r, x बिलोंगिंग टू r, x बिलोंगिंग टू r. जैसे एक कंप्लीट लाइन जाएगी, ये कंप्लीट लाइन वीकेंड से इसकी वजह से गई. एक और कंप्लीट लाइन जाएगी, वो हम कह सकते हैं इसकी वजह से गई. हाँ, x बिलोंगिंग टू r, x बिलोंगिंग टू r. बट याद रखना है कि ये देखो, इसको देखना, ये पूरा ये सेकेंड टर्म क्या था? ये फर्स्ट टर्म के लिए x की वैल्यूज है, ये सेकेंड टर्म के लिए है, ये थर्ड टर्म के लिए, और ये फोर्थ टर्म के लिए है. तो ये वाली लाइन -2 to 2 इसको रिप्रेजेंट कर रही है. x नॉट बिलोंगिंग 0 to 1 वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. x बिलोंगिंग टू r वो ये वाली लाइन जा रही है. अब मैं इस पे आ रहा हूँ, x बिलोंगिंग टू r नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर. तो ये जो मैंने सबसे ऊपर वाली लाइन बनाई है, ये सबसे ऊपर वाली लाइन हमें बार बार इंटीजर्स पे ब्रेक करनी पड़ेगी. इसी तरह से क्या आगे भी ब्रेक होती जाएगी, इसी तरह से. और ठीक है. अब आइए कॉमन पे. तो अगर कॉमन पार्ट्स की बात की जाए तो देखिए कॉमन कहाँ दिख रहा है? कॉमन एक बार अपने को ये दिख रहा, फिर कॉमन एक बार ये दिख रहा, फिर कॉमन एक बार ये दिख रहा. तो मैं फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ. फाइनल आंसर हमारी प्रॉब्लम का हुआ x बिलोंगिंग -2 to -1 यूनियन, ये -1, -1 to 0 यूनियन 1 to 2. स्टूडेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम्स को 2 से 3 बार रिपीट करिए, देन यू विल बी कंफर्टेबल. 4 टर्म्स थे, चारों को मैंने 1 by 1 डिफाइन किया,
उनके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज निकाली, उनको ले जाके मैंने प्लॉट कर दिया। अब जो कॉमन आ रहा दैट इज माई आंसर। तो आवर आंसर -2 to -1 यूनियन -1 to 0 यूनियन 1 to 2। ओके, so this was our problem number 3. Now problem number 4. अब की बार मैं देखने में एक छोटा सा प्रॉब्लम ले रहा हूं। f of x is equal to sin inverse e to the power x. I have to find here domain as well as range. Fine. Sin inverse e to the power x we have to find domain as well as range. सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। बताओ, इज देयर एनी डिनोमिनेटर? नो। इज देयर एनी स्क्वायर रूट? नो। यहाँ पे डोमेन निकालने की कौन सी कहानी अप्लीकेबल होगी? बाहर एक फंक्शन है, अंदर एक फंक्शन है, अंदर वाला बाहर वाले की विद इन डोमेन होना चाहिए। बाहर कौन है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स की स्टैंडर्ड डोमेन होती है -1 to 1। वी विल से e to the power x must be -1 to 1 for domain e to the power x must be -1 to 1. Now e to the power x is what? It is an exponential term. E to the power x is an exponential term, always positive. So -1 to 1 will have no significance. We will say 0 to 1. We want e to the power x 0 to 1. We want e to the power x 0 to 1. Now go to the graph of e to the power x. In the graph of e to the power x, on the y-axis 0 to 1. तो y-axis पे 0 to 1 होने के लिए, y-axis पे 0 to 1 होने के लिए ग्राफ का कौन सा पोर्शन हम लेंगे? चलो मैं ग्राफ बना रहा हूं। This is graph of e to the power x. ठीक है, किसका ग्राफ मैंने बनाया? ग्राफ ऑफ e to the power x. Now what we want, ये 0.1 होता है, ठीक है। हमें e to the power x 0 to 1 चाहिए, 0 to 1 चाहिए, यानी ग्राफ का ये वाला पार्ट चाहिए। e to the power x on the y-axis 0 to 1. So we want this portion of the graph. उसके corresponding x हमारा कहां से कहां तक जा रहा है? x is going from -∞ to 0. x is going from -∞ to 0. So our answer x belonging -∞ to 0. अब मैं आ रहा हूं रेंज वाले पार्ट पे। फॉर रेंज, what we know about the range? About the range we know that range is values of the function corresponding to values of x in domain. Now आप खुद बताओ, e to the power x हम कहां से कहां तक ले रहे हैं? 0 to 1 ले रहे हैं। So I will say sin inverse is being operated on 0 to 1. साइन इनवर्स हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं किसके ऊपर? 0 to 1 के ऊपर। अब आप साइन इनवर्स के ग्राफ में चले जाओ। साइन इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स। ये ग्राफ है साइन इनवर्स x का। ठीक है, ये ग्राफ है साइन इनवर्स x का। अब आप खुद इस ग्राफ को देखो, ये कौन सा पॉइंट होता है? π/2 होता है, ये
माइनस पाई बाई टू होता है। साइन इनवर्स किस पे लिया है, 0 to 1 के ऊपर, तो ये 0 to 1 किसकी वैल्यूज होगी, इनपुट एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस पे 0 to 1 जाने पे, एक्स एक्सिस पे 0 to 1 जाने पे, ऑन वाई एक्सिस हम कितना जाते हैं, 0 से पाई बाई टू। सो रिजल्ट इज 0 to पाई बाई टू, ये हमारी रेंज कहलाएगी। स्टूडेंट समझिए, कुछ भी मैं डायरेक्ट मत करो कि साइन इनवर्स 0 पे लिया, साइन इनवर्स 1 पे लिया, यहाँ पे तो सीधा सीधा चल रहा है, बट किसी और प्रॉब्लम में धोखा हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ग्राफ की हेल्प लिया, मैंने ग्राफ की हेल्प ली है। मुझे साइन इनवर्स ऑपरेट करना है 0 to 1 के ऊपर, तो मैंने डायरेक्टली साइन इनवर्स की वैल्यूज नहीं निकाली, मैं ग्राफ पे गया। इन द ग्राफ 0 to 1 जाने पे साइन इनवर्स 0 to 1 ये इनपुट है, इनपुट कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे। तो 0 to 1 जाने पे वाई एक्सिस में मूवमेंट क्या है, 0 से पाई बाई टू, 0 से पाई बाई टू। हमारा 0 पे क्या था, इक्वल का साइन नहीं था, तो 0 पे वैल्यू ग्राफ की 0 आ रही है, बट वो नहीं लेंगे क्योंकि 0 हमने ले नहीं रखा है। सो 0 पे राउंड ब्रैकेट है, पाई बाई टू पे स्क्वायर ब्रैकेट है। सो राउंड ब्रैकेट 0 to स्क्वायर ब्रैकेट पाई बाई टू। अच्छा बताओ, इन द सेम प्रॉब्लम इफ आई डू दिस कॉज इनवर्स, चलो इसको प्रॉब्लम नंबर 5 का नाम देते हैं। मोर और लेस वही वर्किंग रहेगी जो अभी करी है, जल्दी से इसको कर लेते हैं। f of x is equal to cos inverse e to the power x, cos inverse e to the power x। cos inverse के अंदर भी हम लोग क्या कहते हैं, -1 to 1। सो वंस अगेन e to the power x -1 to 1, तो वंस अगेन e to the power x 0 to 1, वंस अगेन x belonging -infinite to 0। ओके, तो डोमेन का कैलकुलेशन सेम टू सेम वही रहा जो साइन इनवर्स के समय किया था। e टू द पावर x पॉजिटिव होता है, -1 तक कभी नहीं जाएगा, तो -1 to 1 का मतलब होगा 0 to 1। अब e की पावर x 0 to 1 होना चाहिए, e की पावर x 0 to 1 होना चाहिए। e की पावर x का मतलब ग्राफ 0 to 1 होना चाहिए। ग्राफ की वैल्यू कहाँ पाई जाती है, y एक्सिस पे, इनपुट कहाँ पाया जाता है, x एक्सिस पे। तो e टू द पावर x 0 to 1 होना चाहिए, मीन्स ग्राफ की वैल्यू 0 to 1 होनी चाहिए, मीन्स y एक्सिस, ऑन द y एक्सिस 0 to 1। तो y एक्सिस पे 0 to 1 होने के लिए ग्राफ का ये वाला पार्ट लेंगे, और इस वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग x क्या आएगा, -infinite to 0। तो डोमेन आ गई -infinite to 0। अब आइए रेंज की बात करते हैं। रेंज की बात करते हैं तो f of x is equal to cos inverse e to the power x। As we did in the previous problems, same thing is here। cos इनवर्स हम लेंगे किसका, cos इनवर्स लेंगे 0 to 1 का। ग्राफ में जाते हैं, ग्राफ ऑफ cos इनवर्स, ग्राफ ऑफ cos इनवर्स। स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को समझिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है ये, इसके थ्रू आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। नाउ cos इनवर्स 0 to 1, 0 to 1 क्या होगा, इनपुट कहां होता है, ऑन द एक्स एक्सिस। अब देखो cos इनवर्स 0 to 1, cos इनवर्स 0 to 1, तो 0 to 1 पे ये ग्राफ हमारे काम का है, एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस पोर्शन ऑफ ग्राफ y एक्सिस में मूवमेंट क्या है, 0 से पाई बाई टू। बट अब ध्यान से सुनना, 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, पाई बाई टू, और 1 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ के लिए 0 है। ऑन द एक्स एक्सिस 0 के करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पे पाई बाई टू मिल रहा, और 1 के करस्पॉन्डिंग 0 मिल रहा। सो वी विल राइट 0 to पाई बाई टू, क्योंकि छोटे से बड़ा लिखा जाता है, पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर। बट अब ये समझना, पाई बाई टू किससे आया, पाई बाई टू बिकॉज ऑफ 0 आ रहा, और 0 पे क्या था, इक्वल नहीं था, पाई बाई टू पे राउंड आएगा। जो 1 वैल्यू हमें मिली है, ये जो हमें 0 मिला है, 0 ग्राफ की वैल्यू 0 किस पे मिली है, इनपुट 1 के करस्पॉन्डिंग, 1 पे इक्वल है, 0 पे भी स्क्वायर आएगा। फिर से सुनना, हमने cos इनवर्स लिया किसके ऊपर लिया, cos इनवर्स लिया 0 to 1 के ऊपर, 0 के करस्पॉन्डिंग पाई बाई टू मिला, और 1 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला, 0 मिला।
1 पे इक्वल था इसलिए 0 पे इक्वल आएगा, 0 पे इक्वल नहीं था पाई बाई 2 पे इक्वल नहीं आएगा, 0 के करस्पॉन्डिंग क्या मिला पाई बाई 2, 0 पे इक्वल नहीं है पाई बाई 2 पे इक्वल नहीं आएगा. तो दिस टाइम आंसर इज 0 to pi by 2 where 0 has square bracket, pi by 2 has round bracket. Now student problem number 6. We will do problem number 6. F such that R to R f of x is equal to x cube plus x square plus 3x plus sin x. For this function, you have to answer about 1 1, many 1, onto into. ओके तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 1 मैनी 1 की. याद करिए 1 1 मैनी 1 में मैंने आपको 3 से 4 मेथड बताए थे. फर्स्ट वन वॉज स्कूल मेथड एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2. आई विल नॉट प्रेफर दैट हेयर. आप खुद बताओ इसके अंदर x1 रखना x2 रखना इक्वेट करना, बिकॉज ऑफ साइन x इट विल बी टू मच कॉम्प्लिकेटेड. आई विल गो विद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. मैंने आपको एक डिफरेंशिएशन का मेथड बताया था. डिफरेंशिएट द फंक्शन, सो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस cos x. 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 plus cos x. After differentiation, if you are getting result fully positive, complete positive or complete negative, then function is 1 1, otherwise many 1. If this expression is complete positive or complete negative, answer will be 1 1. But how will we decide it? So it is 3x square plus 2x plus 3. मैं पहले इतनी क्वाड्रेटिक को कंसीडर कर रहा हूँ और इसका मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ. पहले मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1 प्लस cos x. नाउ आई एम राइटिंग इट 3 times x प्लस 1/3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/9. चेक करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab. जो b स्क्वायर आएगा उसको एडजस्ट करने के लिए माइनस 1/9. सो इन दिस वे f डैश x इज इक्वल टू कितना मिला मैं, इट इज 3 times x प्लस 1/3 होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/9. 1 माइनस 1/9 ये कितना बनाएगा, 1 माइनस 1/9 इट विल मेक 8/9 और 3, तो 8/3 प्लस cos x. चेक करिए, सो 3 times x प्लस 1/3 होल स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा 8/9, 3 से मल्टीप्लाई होके दैट इज 8/3. So 1 minus 1/9. Now, this is positive because of square. What about this one? It is also always positive. बताओ कैसे? cos की वैल्यू क्या होती है? cos की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में. cos की वैल्यू होती है -1 to 1. 8/3 कितना है, 8/3 हुआ 2 point something, 2.5 से भी बड़ा. 8/3 विल बी मोर देन 2.5. cos होता है -1 से 1 के बीच में, तो 8/3 प्लस cos x will make positive. In this way f dash x is always positive, so clearly f of x is 1 1. ये डैश का सिंबल सबको क्लियर होगा कि जो डिफरेंशिएशन होता है dy by dx उसी को हम डिनोट करते हैं डैश के सिंबल से. सो इन दिस वे फंक्शन इज क्लियरली 1 1. तो 1 1 मैनी 1 में से हमारा आंसर आ गया, फंक्शन इज 1 1. नाउ वी हैव टू फाइंड ऑन टू एंड इनटू. नाउ वी हैव टू चेक ऑन टू एंड इनटू.
ऑन टू और इनटू का तरीका क्या होता है? कोडोमेन इक्वल टू रेंज. कोडोमेन इज गिवन ऑल द रियल नंबर. एनी हाउ इफ वी कैन फाइंड रेंज एंड रेंज इक्वल टू कोडोमेन, देन आंसर विल बी डायरेक्टली ऑन टू, अदरवाइज इनटू. चलिए अब इसकी रेंज की बात करते हैं. देखिए, इट इज व्हाट, इतने पार्ट की अगर मैं बात करूं, इट्स अ पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल. चलिए, जो मैं यहां पे अब लिख रहा हूं आप उसको देखना. एफ ऑफ एक्स हैज डोमेन minus infinite to infinite. F of x has domain minus infinite to infinite. F of minus infinity going toward minus infinity. F of infinity going towards plus infinity. स्टूडेंट इस बात को समझिएगा. You have a polynomial and you want to find the value of polynomial at infinity. Just put infinity in the highest power term. क्या बोला मैंने? आपको polynomial की value infinity में निकालनी है. You will not put infinity everywhere. You will just put in the highest power. मुझे माइनस इन्फिनिटी पे देखना है तो माइनस इन्फिनिटी का क्यूब माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे देखना है इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी. अब ये जो मैंने माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी वैल्यू निकाली, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी हमें साइन में भी रखना चाहिए. बट बताओ, आपने x की जगह इन्फिनिटी रखा, साइन इन्फिनिटी क्या देगा? -1 से 1 के बीच का एक नंबर. साइन के अंदर कुछ भी रखो, रिजल्ट क्या आता है? -1 to 1 आता है. तो जब मैंने इन्फिनिटी रखा तो ये पूरा इन्फिनिटी भागा एंड इट्स अ स्मॉल नंबर, तो रिजल्टेंट क्या आ गया? इन्फिनिटी. जब मैंने माइनस इन्फिनिटी रखा, ये पूरा क्या बन गया? माइनस इन्फिनिटी एंड इट्स अ स्मॉल नंबर. माइनस इन्फिनिटी और स्मॉल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? माइनस इन्फिनिटी रहेगा. तो दिस फंक्शन हैज डोमेन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट. माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी जा रहा. अब मैं ये बोलूंगा, सिंस एफ ऑफ एक्स इज अ continuous function having values moving towards minus infinity and plus infinity both, so range is equal to minus infinite to infinite. Range is equal to minus infinite to infinite. Range is minus infinite to infinite. Codomain is already capital R. So what about the answer? Codomain is R. Range is minus infinite to infinite. ठीक है? They are equal. So answer is onto. Our answer function is onto. We have found range minus infinity to infinity. Codomain is R. Two are equal. So clearly answer is onto. So for this function, our answer is 1, 1 and onto. Okay. Next one. Now problem number 7. F such that square bracket minus 1 by 2 to 0 to capital B, f of x is equal to cos inverse applied over 1 minus 4 x square. Find B if f of x is 1, 1 and 1, 2. Okay.
function is given 1 1 on 2, then we have to find b. क्या बोलेंगे? Since f of x is on 2, so codomain equal to range, so required b will be equal to range. Required b will be equal to range. So anyhow अगर हम इस प्रॉब्लम का रेंज निकालें तो b निकल आएगा. हमसे कैपिटल b पूछा गया है, कैपिटल b किसके इक्वल है? रेंज के. तो एनी हाउ अगर हम रेंज निकाल लें तो हमारा कैपिटल b निकल आएगा. चलिए रेंज के लिए ट्राई करते हैं. रेंज पे आते हैं. प्रॉब्लम में डोमेन गिवन है क्या? डोमेन इज -1/2 to 0. So x belonging -1/2 to 0. x हमें -1/2 से 0 गिवन है. -1/2 से 0 गिवन है, इट मीन्स x इन बिटवीन -1 to 0. नाउ स्टूडेंट अब यहीं पे समझिएगा, यहीं पे आप लोग गड़बड़ करते हो. x अगर -1/2 से 0 है तो स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? स्क्वायर विल गो फ्रॉम 0 to 1/4. स्क्वायर विल गो फ्रॉम 0 to 1/4. x मेरा -1/2 to 0 है तो स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 to 1/4. वॉट अबाउट 4x स्क्वायर? मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया. 4x स्क्वायर 0 to 1 होगा. -4x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा. देन 1 - 4x स्क्वायर, सब जगह 1 ऐड कर दो. 1 - 4x स्क्वायर सब जगह 1 ऐड कर दो. क्या? सब जगह 1 को ऐड कर दो. So now we have f of x is equal to cos inverse applied over 1 - 4x square. 1 - 4x square का मूवमेंट क्या है? 0 से 1 के बीच में. ना cos इनवर्स के ग्राफ में चलिए. ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ओके. ग्राफ ऑफ cos इनवर्स. हम cos इनवर्स किस पे ले रहे हैं? 0 to 1 पे ले रहे हैं. 0 to 1 क्या है? इनपुट 0 to 1 होने पे ग्राफ का ये वाला पोर्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस पोर्शन ऑन द वाई एक्सिस मूवमेंट क्या है? 0 से π/2. सो रेंज इज 0 to π/2. In this way, answer for B 0 to π/2. Okay, answer for B 0 to π/2. Function is given 1 1 and on 2. Because of on 2 codomain equal to range, so B equal to range. Range we have found 0 to π/2. So our answer for B is 0 to π/2. Clear? चलिए. Now I am coming to प्रॉब्लम नंबर 8. और एक सिंपल सा प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ. f of x is equal to cos of x plus cos of ax. cos of x plus cos of ax. हमसे पूछा गया है a will be what? a रैशनल होगा, रैशनल होगा. दैट वी हैव टू आंसर. a will be
rational or irrational. If f of x is a periodic function, if f of x is a periodic function, then we have to answer a will be rational or irrational. चलिए, cos of x का पीरियड क्या होगा? 2 पाई, कैन बी रिटन 2 पाई बाई 1. cos of ax का पीरियड क्या होगा? 2 पाई अपॉन a. Period of cos of x, period of cos of ax. Now we will go for their LCM. LCM will be what? LCM of 2 pi and 2 pi divided by SCF of 1 and a. So it is 2 pi divided by SCF of 1 and a. क्या बोलेंगे? Is possible only when a is rational. बताओ, आपको बोला गया फंक्शन इज पीरियोडिक. फंक्शन पीरियोडिक है मतलब t1 t2 का एलसीएम एग्जिस्ट करेगा. सिंस फंक्शन इज पीरियोडिक तो एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 मस्ट एग्जिस्ट. t1 और t2 का एलसीएम किस पे डिपेंड कर रहा? 1 और a के एचसीएफ पे. 1 और a का एचसीएफ निकलेगा तभी एलसीएम की वैल्यू आ पाएगी, और 1 और a का एचसीएफ तभी निकलेगा व्हेन a इज रैशनल. जैसे मैंने आपको बताया था एलसीएम दो रैशनल का ही निकलता है, दो इररैशनल ऑफ सेम टाइप का निकलता है. सिमिलरली एचसीएफ भी तभी निकलेगा व्हेन बोथ द नंबर आर रैशनल. 1 इज ऑलरेडी रैशनल, a should also be rational. The problem has answer a must be rational. चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन, प्रॉब्लम नंबर 9. f of x is equal to cos of cos x plus cos of sin x. For this function we are looking for period. Cos of cos x plus cos of sin x, we are looking for period. Fine. Now here we will find the period one by one. पहले हम इसकी बात करते हैं, cos of cos x की. It is a composite function. Agree? Cos of cos x, it is a composite function. मैंने periodic function में आपको composite का period निकालना बताया था कि in case of composite function period किस पे डिपेंड करता है? अंदर वाले पे. बाहर वाला अगर many वन हो तो अंदर वाले के इक्वल होता है या उससे लेस होता है. बाहर cos है विच इज many वन, तो हमारा पीरियड या तो अंदर वाले के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा. अंदर वाले का कितना? 2 पाई, तो आवर पीरियड विल बी आइदर 2 पाई और पाई बाई 2 एंड सो ऑन. नाउ अंदर वाले का 2 पाई है, 2 पाई से छोटा पाई. कॉस के साथ x प्लस पाई करने पे माइनस कॉस x, बाहर वाला कॉस अंदर वाले माइनस को एडजस्ट कर लेगा. सो इट हैज पीरियड पाई. इट इज अ कंपोजिट फंक्शन. पीरियड अंदर वाले से निकलेगा. बाहर वाला मैनी वन है तो पीरियड अंदर वाले के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा. अंदर का 2 पाई है तो उससे छोटा पाई वी विल चेक करने का मतलब x के साथ प्लस करके देखेंगे कि फंक्शन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा. x के साथ प्लस पाई किया, माइनस कॉस x आया, लेकिन बाहर कॉस था, उसने अंदर वाले माइनस को एडजस्ट कर लिया. सेम स्टोरी है. बाहर वाला मैनी वन है तो हमारा जो पीरियड होगा वो अंदर वाले के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा. अंदर वाले का 2 पाई, उससे छोटा पाई. x के साथ प्लस साइन x प्लस पाई माइनस,
बाहर कॉज है, उसने माइनस को एडजस्ट कर लिया, सो पीरियड इज पाई। तो पहले आपको ये समझना होगा, इसका भी पीरियड पाई होगा, इसका भी पाई होगा, ये पहले समझ में आना चाहिए। ये मैंने कैसे निकाला, पीरियोडिक फंक्शन में लास्ट में मैंने आपको सिखाया था हाउ टू फाइंड पीरियड ऑफ कंपोजिट फंक्शन। नाउ व्हाट विल बी देयर एलसीएम, देयर एलसीएम इज पाई, देयर एलसीएम इज पाई। बट स्टूडेंट चेक करना पड़ेगा कि पाई लिया जाए या पाई से छोटा लिया जाए। नाउ इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इफ आई गो विथ पाई बाई 2, मैंने आपको एक रिमार्क लिखवाया था कि एलसीएम के थ्रू जो आंसर आता है समटाइम्स उससे छोटा कैन बी द पीरियड इफ दैट छोटा नंबर इज सेटिस्फाइंग मैथमेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। मेरा एलसीएम पाई आ गया, आई एम गोइंग टू ट्राई अ नंबर पाई बाई 2, गोइंग टू ट्राई नंबर पाई बाई 2। ट्राई करने का मतलब क्या होगा, x के साथ प्लस पाई बाई 2 करूंगा। अगर फंक्शन वापस आ गया तो पाई बाई 2 के साथ जाएंगे, अदरवाइज पाई विल बी द आंसर। लेट्स चेक, cos of x प्लस पाई बाई 2 प्लस cos of sin of x प्लस पाई बाई 2। नाउ cos x plus pi by 2, so cos over minus sin x, sin x plus pi by 2 cos x। now cos के अंदर माइनस गायब हो जाएगा, that is cos of sin x plus cos of cos x। so in this way clearly we are getting f of x, clearly we are getting f of x। so f of x plus pi by 2 is coming equal to f of x। so what about the answer, answer for this problem is pi by 2, answer for this problem is pi by 2। हमसे बोला गया था पीरियड निकालिए, पहले हमने दोनों टर्म का इंडिविजुअल पीरियड निकाला, दैट इज पाई, पाई और पाई का एलसीएम पाई। But when we are checking a number less than pi, pi by 2, we are getting the function back, so answer is pi by 2। अब अगर किसी के मन में आ रहा हो कि pi by 2 से छोटा चेक करिए, pi by 4 कर सकते हैं, but will that work? आंसर है नहीं। अगर आप pi by 4 के लिए जाओगे तो जैसे ही आप x प्लस pi by 4 करोगे, x प्लस pi by 4, x प्लस pi by 4, ये सब बदल जाएंगे। pi by 2 के साथ एडवांटेज क्या था, x प्लस पाई बाई 2 करने पे cos साइन बन गया, साइन cos बन गया, एंड वी हैव गॉट ओरिजिनल फंक्शन बैक। वो एडवांटेज किसी और के साथ नहीं है, तो हम लोग पाई बाई 2 से छोटा नंबर चेक नहीं करेंगे। एलसीएम इज पाई, बट उससे छोटा पाई बाई 2 चेक करने पर पीरियोडिक होने की मैथमेटिकल कंडीशन एग्री हो रही है, दैट्स द रीजन आंसर इज पाई बाई 2। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। now we will do problem number 10। we will do problem number 10। I have f of x is equal to cos of nx into sin of 5x by n। बोला गया है फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n such that f of x, such that f of x has period equal to 3 pi। okay, we have to find value of n, period is given, period is 3 pi। we have to find value of n, period is given, period is 3 pi। now मैंने आपको
पीरियोडिक फंक्शन के नोट्स में एक फॉर्मूला लिखवाया था, इफ t इज पीरियड देन f of minus t is equal to f of 0 is equal to f of t. So here f of minus 3 pi is equal to f of 0 is equal to f of 3 pi. Now it will give cos of minus 3n pi sine of minus 15 pi upon n is equal to 0 is equal to cos of 3n pi into sine of 15 pi by n. Now cos के अंदर से माइनस गायब हो जाएगा तो cos of 3n pi, बट साइन के अंदर का माइनस बाहर आएगा. सो एक पूरा माइनस बाहर आ गया. साइन 15 pi by n is equal to 0 is equal to cos 3n pi sin 15 pi by n. नाउ दोनों सेम है बट इसमें माइनस साइन है तो ये उधर आके ऐड हो गया. सो 2 टाइम्स cos 3n pi into sin 15 pi by n is equal to 0. 2 times cos 3n pi into sin 15 pi by n is equal to 0. So we have cos 3n pi into sin 15 pi by n is equal to 0. Now multiplication of two things 0 means first one equal to 0 or second one equal to 0. Now cos बताइए, cos मुझे 0 चाहिए, कब आएगा? When cos is applied over odd multiple of pi by 2. साइन मुझे 0 चाहिए, कब आएगा? When sin is applied over multiple of pi. So in this way, from here n is what? N is 2m plus 1 by 6. Pi pi cancel. So n is what? 2m plus 1 by 6. And from here, pi pi cancel. N is what? 15 by k. अब मैं आपको बोलूँ from here n doesn't belong to i. i का मतलब इंटीजर. बताओ 2m plus 1 क्या है? ऑड. और 6 क्या है? इवन. ऑड अपॉन इवन कभी इंटीजर आएगा? कभी नहीं आएगा. प्रॉब्लम में बोला गया था इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n, तो वी विल गेट नो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर. ये अपने काम का नहीं है. इधर आते हैं. बताओ n क्या है? इंटीजर. n इंटीजर है. n इंटीजर है तो k को क्या होना पड़ेगा? n इंटीजर है तो k क्या हो सकता है? 15. 15 अपॉन 15 k 5 हो जाए. 15 अपॉन 5 3 k 1 हो जाए. सो k प्लस माइनस 1 n प्लस माइनस 15. ये वैल्यूज अपने काम किया. k प्लस माइनस 3 n प्लस माइनस 5. k प्लस माइनस 5 n प्लस माइनस 3. k प्लस माइनस 15 n प्लस माइनस 1. So total, how many values of n are of our use? 2, 4, 6, 8. Total 8 values of n are of our use. Fine, student? So here in this problem, I have applied property f of minus t is equal to f of 0 is equal to f of t. At the last, I am getting 8 integral values of n which are of our use.
The problem has answer 8 values of n. Okay. Problem number 11. F of x is equal to log of 2 log x to the base 10 plus 2 divided by minus x, where log has base 100x, g of x curly bracket x, find range of g of x if fog exists. Okay. So if fog exists, so हम लोग ये बोलेंगे for fog of x to exist, f of x must be defined. F of x and g of x. F of x and g of x must be defined. G of x is curly bracket x, clearly defined. तो हम लोग मेनली f of x की बात करें कि f of x डिफाइन होना चाहिए for f of x to be defined. Base of log greater than 0, not equal to 1, and जिस पे हमने log ले रखा है that all expression must be greater than 0 and अंदर वाले log की वजह से x greater than 0. So these three conditions are required. Now 1 by 1 अगर हम बात करें, यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें मिलेगा x not equal to 1 by 100 and x greater than 0. इस पे आते हैं. x पॉजिटिव है तो माइनस एक्स क्या होगा? नेगेटिव. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेंस नेगेटिव से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा. सो 2 log x बेस 10 प्लस 2 लेस देन 0, log of x to the base 10 लेस देन माइनस 1. log रिमूव करेंगे, बेस ऑफ log will become base of other side. So what are we getting about x? x less than 1 by 10. So now हमें x के बारे में क्या क्या पता लगा? x greater than 0, not equal to 1 by 100, x less than 1 by 100. So finally x belongs to 0 to 1 by 100 union 1 by 100 to 1 by 10. Now इसको देखिए, फाइनली x को लेके क्या आंसर निकला? 0 to 1 by 100 union 1 by 100 to 10. 0 to 1 by 100, is it a fraction? 1 by 100 to 10, it is also a fraction. और फ्रैक्शन का करली ब्रैकेट उसी फ्रैक्शन के बराबर होता है. हमसे प्रॉब्लम में पूछा गया था रेंज ऑफ जी. जी किसके बराबर है? करली ब्रैकेट एक्स के. जी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, एक्स इज कमिंग अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का करली ब्रैकेट उसी के बराबर होता है. तो जैसे ही मुझे एक्स मिल गया, as soon as I have found values of x, now I can say range of g of x is equal to curly bracket x
will be 0 to 1 by 100 union 1 by 100 to 1 by 10. Getting it? This is our answer. हमें g का रेंज निकालना था. g is what? Curly bracket x. Curly bracket x. Now x is what? x is a fraction. जब आप इन x की वैल्यूज को यहां रखोगे तो फ्रैक्शन का कर्ली ब्रैकेट उसी के बराबर आएगा. तो रेंज ऑफ g is what? 0 to 1 by 100 union 1 by 100 to 1 by 10. Same as values of x. Fine. So this was problem number 11. अब मैं जल्दी से आ रहा हूं प्रॉब्लम नंबर 12 के ऊपर. So problem number 10 I have f such that 3 by 2 to infinite to 7 by 4 to infinite f of x is equal to x square minus 3x plus 4. प्रॉब्लम में बोला गया सॉल्व इक्वेशन f of x is equal to f inverse x. Now student, at the time of inverse function, in properties of inverse function मैंने ये चीज़ आपको बताई थी. f of x is equal to f inverse x. What does it imply? f of x equal to x. So देखिए, here in this problem to get inverse फिर उसको यहाँ रखना, then function inverse को solve करना, it will be a tedious job. From the property of inverse function we know that graph of function and inverse cut on the line y equal to x. So fx equal to f inverse implies that f of x equal to x. So problem is so simple, equating it with the x, we can get the answer. Now it is x minus 2 whole square equal to 0. So what is x? x is 2. है समझो कि हमसे बोला गया था सॉल्व द इक्वेशन f of x इक्वल टू f इनवर्स. मैंने क्या ले लिया? f of x इक्वल टू x. Now is clearly we are getting, I am getting the answer, that is f of x equal to, sorry, x equal to 2. ठीक. अब एक आखिरी प्रॉब्लम स्टूडेंट में ले रहा हूं, प्रॉब्लम नंबर 13, और ये ग्राफ के ऊपर प्रॉब्लम है. This problem is find number of real solutions. Find number of real solutions of equation sin of x is equal to x by 10. ठीक. We will do this problem graphically. We have to find number of real solution of the equation sin of x equal to x by 10. Means what? x की वो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए लेफ्ट और राइट इक्वल हो जाए. In terms of graph, what we say? Draw the graph of left hand side, draw the graph of right hand side for the same coordinate axis. Now at how many points they are intersecting, so many number of real solution will be possible. We have to find number of real solution for this equation. What will I do? I will draw graph of left hand side, graph of right hand side for the same coordinate axis. Now at how many points two graphs are intersecting, that will be our answer. So what we have to draw? Graph of sin of x. Left hand side is
साइन ऑफ एक्स left hand side is sine of x, we know the graph, pi, 2 pi, 3 pi, 5 pi by 2, 3 pi by 2, minus pi, minus 2 pi, minus 3 pi, minus 3 pi by 2. Fine. Now स्टूडेंट x by 10, बताओ x का ग्राफ क्या होता है? ग्राफ ऑफ x का ग्राफ होता है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. तो व्हाट अबाउट x by 10? इट विल ऑल्सो बी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. बट सारा खेल है कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो बनेगी, बट वो साइन के ग्राफ को कितनी जगह कट करेगी? एक तो क्लियर है कि ओरिजिन से पास होगी तो ओरिजिन पे दोनों ग्राफ कट करेंगे. बट नाउ इट विल मैटर कि आपको जो x by 10 की लाइन बनानी है वो आप कैसी बनाओगे. अगर आपने देखना, मेरे हैंड्स को देखना किस तरह से है वो. अगर मैंने ऐसी लाइन निकाल दी, मैंने ये लाइन निकाली, तो कितनी जगह कट हो रहा है? 1 2 3. लाइन अगर मैंने ऐसी निकाल दी तो एक ही जगह कट हो रहा. लाइन मैंने ऐसी निकाली तो ज़्यादा जगह कट होगा. तो नाउ यू विल हैव टू डिसाइड कि जो x by 10 की लाइन आप बनाओगे वो कितने स्लोप के साथ बनेगी. अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट विल वेरी. तो इसका बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप पॉइंट्स रख के एक आइडिया लिया करो कि आने वाली लाइन ग्राफ के ऊपर से जाएगी कि ग्राफ के नीचे से जाएगी. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है, एक है साइन एक्स और एक है x by 10. ठीक, मुझे ये चेक करना है. देखो मुझे ये तो क्लियर है कि जो लाइन आएगी वो इसको तो कट करेगी, इस वाले लूप को तो कट करेगी, लेकिन इस वाले लूप को कट करेगी कि नहीं करेगी उसको चेक कर लेते हैं. मेरी बात समझ आ रही? इस वाले लूप को कट करेगी कि नहीं करेगी उसको चेक कर लेते हैं. उसका सबसे अच्छा तरीका है आप इन दोनों के अंदर x इक्वल टू 5 पाई बाई 2 रखो. आप दोनों के अंदर x इक्वल टू 5 पाई बाई 2 रखो तो क्या बन गया? साइन 5 पाई बाई 2 क्या बन गया? 5 पाई बाई 20. नाउ साइन 5 पाई बाई 2, बताओ साइन 5 पाई बाई 2 कितना होगा? साइन 5 पाई बाई 2 प्लस 1 होगा. ग्राफ सही दिख रहा? साइन 5 पाई बाई 2 प्लस 1 होगा. इस पे आओ, ये कितना है? इट इज पाई बाई 4 लेस देन 1. पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है न्यूमेरिकली? पाई 3.14, पाई बाई 4 1 से छोटा होता है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो x की लाइन आएगी 5 पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू ज़्यादा है, लाइन की कम है, तो लाइन नीचे से पास होगी, लाइन इस लूप के नीचे से जाएगी. बोलो, अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसा कुछ आएगा. जो x बाई 10 की लाइन बनेगी वो इस लूप को काटेगी. कैसे मैंने पता लगाया? 5 पाई बाई 2 पे साइन की वैल्यू ज़्यादा है, लाइन की कम है, तो लाइन लूप के नीचे रहेगी यानी कट करती हुई जाएगी. अब आपको लग रहा होगा मैं आगे नहीं चेक कर रहा, आगे आप कर लेना, आगे पॉसिबिलिटी नहीं है. अब मैं निगेटिव साइड आ रहा हूँ. निगेटिव साइड अगर मैं बात करूँगा तो इसको तो कट करेगी. अब क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ पे कट करेगी कि नहीं करेगी. तो जैसे मैंने 5 पाई बाई 2 चेक किया था, हम -3 पाई बाई 2 चेक कर लें. ये क्लियर है? अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ -3 पाई बाई 2, तो क्या आएगा? साइन ओवर -3 पाई बाई 2 क्या आएगा? -3 पाई बाई 20. ये कितना है? -1 है. इसको चेक करते हैं. -3 पाई बाई 20 इट इज -9.42 बाई 20. माइनस का डेसिमल होगा यानी ग्रेटर देन -1 होगा. माइनस का डेसिमल होगा, ये माइनस का डेसिमल होगा यानी ग्रेटर देन -1 होगा. व्हाट डज इट मीन? कि लाइन की वैल्यू ज़्यादा है, साइन की कम है, तो लाइन नीचे से जाए. लाइन अगर मैं नीचे से ले गया यानी लाइन कम हो गई, जबकि लाइन की वैल्यू ज़्यादा है, साइन की कम है, तो ये जो रेड लाइन आ रही है ये लाइन साइन के ग्राफ के ऊपर से जाएगी. आगे के पॉइंट्स पे आप चेक करना, कहीं पॉसिबिलिटी नहीं है
In this way, intersection 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. टोटल कितनी जगह इंटरसेक्शन मिल रहा? टोटल इंटरसेक्शन मिल रहा है 7 जगह. इस प्रोसेस को समझना कि किस हमें कन्फ्यूज़न हो रहा था, लाइन ऊपर से जाएगी कि नीचे से जाएगी. हमने पॉइंट रख के देख लिया कि लाइन की वैल्यू ज़्यादा है कि साइन की वैल्यू ज़्यादा है. उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड कर लिया कि लाइन ऊपर से जाएगी नीचे जाएगी. यहाँ मैंने पॉइंट रखा, मुझे क्लियर हो गया कि लाइन ऊपर से जाएगी. तो इन दिस वे लाइन ऑफ x/10 cutting our graph at how many point? 7. So our answer is 7. Our answer is 7. So student, आज की क्लास में हम लोग ने टोटल 13 सॉल्व प्रॉब्लम्स किए, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्फिडेंस कि यस प्रॉब्लम्स बनाई जा सकती है. नाउ यू शुड गो फॉर प्रॉब्लम्स प्रोवाइडेड टू यू, उनको आप बनाइए. कई प्रॉब्लम आपसे बनेंगे, कहीं नहीं बनेंगे. सारा खेल एक्सपोजर का है. प्रॉब्लम नहीं बनेगी तभी आपको टीचर की ज़रूरत होती है. तो कभी मत ये सोचिए कि सब कुछ आपसे बन जाएगा. ट्राई टू गिव योर बेस्ट. मैक्सिमम प्रॉब्लम जरूर बनेंगे आपसे, जो नहीं बनेगा वो टीचर आपसे जरूर डिस्कस करेगा. ओके, थैंक यू.